السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وفي السند المتصل منا إلى الإمام الحمامي الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري نفعنا الله بعلومه وفيوده آمين يا رب العالمين. باب من لم يتوضأ إلا من غش المثقل. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون فإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت أن نعم فقمت حتى تجلاني الغش وجعلت أصب فوق رأسي ماء فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أراه إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال لا أدري أي ذلك قال تسمع يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قال تسمع رضي الله تعالى عنها فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فعجبنا وآمنا واتبعنا فيقال نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قال تسمع رضي الله تعالى عنها فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ غشی اور بے ہوشی کا طاری ہو جانا اگر وضو کے نواقضات میں سے ہے یا وضو کے نواقضات میں سے نہیں ہے، اس کو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس باب میں ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کسی آدمی نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد یا وضو کی حالت میں اس کو بے ہوشی طاری ہو گئی، غشی آ گئی، تو اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں۔ اصل اس میں یہ دیکھنا ہے کہ غشی کی وجہ سے اس کا اعضاء معطل ہو گئے کہ نہیں، اس کا احساس ختم ہو گیا کہ نہیں۔ اگر اس کے اعضاء معطل ہو گئے یا اس کے دماغ میں احساس ختم ہو گیا تو پھر اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یعنی غشی مستقل ہو، زیادہ بڑی ہو، اہم ہو، ثقیل ہو کہ جس کی وجہ سے اعضاء وغیرہ ختم ہو جائے، آدمی کا احساس ختم ہو جائے، تو اس صورت میں اس کی وجہ سے وضو اس کا ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر کیا ہے ایسا نہ ہو تو احساس باقی رہے تو پھر اس صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور روایت میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کی جو اس سے پہلے کئی مرتبہ تمہارے سامنے آ گئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن کی نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے گھر آئی، دیکھا تو یہاں تو مسجد نبوی میں نماز ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اس وقت میں کون سی نماز ہو رہی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا آسمان کی طرف اور یہ بتایا کیا ہے سورج گرہن کی وجہ سے نماز ہو رہی ہے۔ پھر اس صورت میں یہ پوری حدیث تمہارے سامنے کئی مرتبہ گزر چکی ہے۔ اور ابھی جو تم نے حدیث پڑھی اس میں فاطمہ کی روایت ذکر کی جو ان کے دادی حضرت اسماء سے روایت بیان کر رہے تھے۔ ان کو شک ہوا کہ حضرت اسماء نے کون سا لفظ کہا تھا، وہ مجھے یاد نہیں رہا، اس وجہ سے انہوں نے یہ لفظ کہے یا یہ لفظ کہے، او قالا پڑھنا چاہیے تھا۔ جی باب مسح الراس كله لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. وقال ابن المسيب رضي الله تعالى عنه المرأة بمنزلة الرجل يمسح على رأسه. وسئل مالك أيجزي أن يمسح بعض رأسه فاحتج بحديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه. حدثنا عبد الله بن يوسف
قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل يده مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैहि अब यहाँ सर से मसा के मसले को जिक्र कर रहे हैं कि सर के ऊपर मसा किया जाएगा। ये इसमें तो इत्तेफाक है कि वुजू में 3 आज़ा जो हैं उसको धोए जाएंगे और सर के ऊपर मसा किया जाएगा, लेकिन सर के ऊपर मसा की मिकदार क्या होगी इसमें अइम्मा के दरमियान इख्तिलाफ है। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैहि के नज़दीक मिकदार नासिया मसा करना फर्ज है, यानी रूबे रास चौथाई हिस्से का मसा कर सर के चौथाई हिस्से का मसा करना फर्ज है। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैहि के नज़दीक पूरे सर का मसा करना फर्ज है। और इसी तरीके से हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि अदना मा युतलक़ु अलैहि इस्मुल मसा, मसा करना क्या है काफ़ी है। असल में 2 चीज़ें यहाँ पर है, एक तो है मसा आलाए मसा, और आलाए मसा जो है वो हाथ है, और दूसरा है मौज़े मसा, जिस जगह के ऊपर मसा किया जाए वो जो है सर है और वो मुदव्वर है। अगर मुदव्वर के ऊपर मसा किया जाए तो उस सूरत में क्या है आलाए मसा की रियायत की जाए तो और सर का जो क्या ममसूह जो इलाका है उसका एतबार किया जाए तो फिर पूरे अज़ो को मसा करना, पूरे अज़ो को मसा करना ज़रूरी है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि एक को दूसरे के ऊपर गालिब करने की ज़रूरत नहीं है। ममसूह इलाका जो है वो मुदव्वर है और जिससे मसा किया जा रहा है हाथ, तो उस हाथ को सर के ऊपर रख लो तो उतना मसा करना ज़रूरी है। और उस सूरत में जब हाथ को सर के ऊपर रखा जाएगा तो वो चौथाई सर की मिक़दार आएगा। इस वजह से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि चौथाई सर का मसा करना फर्ज है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा अला सबातत क़ौमिन फ़तवज़्ज़अ मसा नासियतिही, इस किस्म के अल्फाज आते हैं जिससे मालूम होता है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुक़द्दम रास के ऊपर मसा किया। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं कि ममसू और आलाए मसा दोनों को अपनी जगह पर रखो। आलाए मसा को अपनी जगह पर रखेंगे और ममसू को उसके ऊपर रखा जाएगा तो फिर जरा सा हिस्सा ही उसका टच होगा। इस वजह से इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैहि के नज़दीक थोड़ा सा अदना मा युतलक़ु अलैहि इस्मुल मसा, ये मसा करना फर्ज वगैरह जरूरी है। बहरहाल यहाँ पर जो हदीस तुम्हारे सामने जिक्र की जा रही है उस हदीस में भी फरमा गया पूरे सर का मसा करना अफजल है, बेहतर है, मसनून है, लेकिन रूबे रास का मसा करना फर्ज है। अब वो रूबे रास का मसा किस तरीके से किया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा कि इस तरीके से हाथ को पेशानी के ऊपर रखा और रखने के बाद उसको पीछे तक ले गए और पीछे तक ले जाने के बाद फिर ये जो हिस्सा है जो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ उसको इसी तरीके से आगे तक लाए, तो इस तरीके से मसा करने की वजह से पूरे सर का मसा हो जाएगा। जी बाबू गस्ल रिजलैन इलल काबैन। حدثنا موسى قال حدثنا وهب عن عمرو عن أبيه شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بطور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفى على يديه من الطور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في الطور فمضمض واستنشق واستنثر 3 غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين। वुज़ू का 14 फर्ज है दोनों पाँव को धोना, और पाँव को कहाँ तक धोया जाएगा तो उसके मुतालिक बताया गया तखनों तक यानी तखने भी उसके अंदर में शामिल होंगे। पाँव का धोना फर्ज है। जमहूर के नज़दीक पाँव का धोना फर्ज है। शियों से नकल किया जाता है कि पाँव के ऊपर मसा कर लेना काफ़ी है। बहरहाल यहाँ पर मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैहि पाँव के धोने का फर्ज और तखनों तक धोने को बता रहे हैं। जी باب استعمال فضل وضوء الناس وأمر جرير
جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت أبا جحيفة رضي الله تعالى عنه يقول خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم بالحاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. وقال أبو موسى رضي الله تعالى عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال لهما اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह वुजू से बचा हुआ पानी उसके मुतालिक तुम्हारे सामने जिक्र कर रहे हैं। फजलुल वुजू का दो मतलब बताए जाते हैं। एक तो ये है कि तुमने वुजू किया और वुजू करने के बाद वो पानी बचा। असल में उस जमाने में हमारे यहाँ तो आजकल नल से वुजू किया जाता है या हौज से वुजू किया जाता है। वहाँ पर जो रोजाना का मामूल था वो नल या हौज वगैरह नहीं था, बल्कि हर एक आदमी अपने अपने बर्तन में वुजू किया करता था। बहरहाल अगर किसी आदमी ने वुजू किया और वुजू करने के बाद उस बर्तन में पानी बच गया तो वो फजलुल माइल वुजू है। अब उस सूरत में उसका क्या हुक्म है? क्योंकि वो पानी अभी इस्तेमाल नहीं हुआ, इस वजह से उसका हुक्म बाकी है। पानी पाक भी है और मुताहिर भी है। दूसरी सूरत ये है कि आदमी वुजू कर रहा है और वुजू करने की वजह से उसके चेहरे से पानी गिर रहा है, उसके हाथ से पानी गिर रहा है। अभी जमीन पर गिरने से पहले अगर कोई दूसरा आदमी उसको लेकर फिर इस्तेमाल कर रहा है तो ये भी इस्तेमाल शुदा पानी है, फजल माँ है। उसका हुक्म क्या है इसको बताना चाह रहे हैं। या तीसरे लफ्जों में अगर और वजाहत के साथ तुम समझना चाहो तो ये बताया कि माए मुस्तअमल पाक है या माए मुस्तअमल नापाक है। इस मसले को तुम्हारे सामने यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। अहनाफ के भी इसमें मुख्तलिफ अक़वाल नकल किए जा रहे हैं। सही और मुख्तलिफ कौल ये बताया जा रहा है कि माए मुस्तअमल पाक है लेकिन पाक करने वाला नहीं है। इस वजह से माए मुस्तअमल के जरिए से जो आदमी कोई वुजू कर रहा हो उसका पानी इस्तेमाल हुआ और वो पानी इस्तेमाल करना वुजू करने के लिए दुरुस्त नहीं है। बहरहाल माए मुस्तअमल के मुतालिक यहाँ पर जिक्र किया कि हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू फरमाया। दूसरा मसला इसके साथ ये भी है कि वुजू किया और वुजू करने के बाद पानी बच गया। डोल से वुजू कर रहे थे, गुस्ल कर रहे थे, तुमने गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद पानी बच गया। अब वो बचा हुआ जो पानी है उसको इस्तेमाल करना जायज़ और दुरुस्त है। मर्द ने अगर इस्तेमाल किया तो औरत इस्तेमाल कर सकती है, या औरत ने इस्तेमाल किया और बचा तो फिर उस सूरत में मर्द उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर औरत और मर्द से मुराद अपने महरम है, गैर महरम वगैरह नहीं है। गैर महरम वगैरह के लिए चूंकि उसमें फितने का अंदेशा है इस वजह से उसको मकरूह करार दिया गया है। जी। حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بيرهم. हुजूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे बच्चे के मौके पर मुंह में पानी भरकर उसके ऊपर कुल्ली की थी। ये हदीस पहले आ गई थी, उस हदीस को बयान कर रहे हैं। जी। وقال عروة عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه. हुजूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू फरमाते थे तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन हुजूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुजू के पानी को बरकत की वजह से हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत और बहुत ज्यादा कोशिश करते थे। जी। باب حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعدي قال سمعت السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه يقول ذهبت بخالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول मेरी खाला मुझको हुजूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर गई। जी। فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وكيع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زرة الحجلة. यहाँ पर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचे हुए पानी को उन्होंने पिया तो मालूम हुआ कि माए मुस्तअमल जायज़ और दुरुस्त है। जी। باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. من غرفة
من غرفة واحدة. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة ففعل ذلك ثلاثا فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ومسى برأسه ما أقبل وما أدبر وغسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने पहले बताया था कि वुजू में नाक में पानी डालना, वुजू में कुल्ली वगैरह करना ये मसनून है और वो 3 मरतबा करना मसनून है। अब यहाँ पर एक दूसरा तरीका बता रहे हैं कि 3 मरतबा भी कर रहे हैं लेकिन मिन कफ़्फ़न वाहिदा, एक ही चुल्लू पानी से किया जा रहा है तो एक ही चुल्लू पानी से अदा हो जाएगा या नहीं। और एक ही चुल्लू से करने के मुख्तलिफ सूरतें हैं। ये तो ये कि इस तरीके से पानी लिया और फिर उस सूरत में जरा सा लिया, कुल्ली कर ली और फिर उसमें नाक में पानी डाला, या उसे उसका दूसरा क्या पहले नाक में पानी डाला फिर उसके बाद बचा हुआ पानी किया। या दूसरी सूरत ये है कि इसी तरीके से तो एक ही को चुल्लू से 3 मरतबा उस एक पानी को इस्तेमाल किया। या क्या है दूसरी सूरत में एक ही चुल्लू पानी से नाक में 3 मरतबा डाला। तो इस सूरत में ये जायज है कि नाजायज है, उस मसले को मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यहाँ पर जिक्र किया है जी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वुजू बताया और उसमें क्या है मज़मज़ा और इस्तिंशाक़ 3 मरतबा करने को जिक्र किया जी। باب مسح الرأس مرة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وحيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بطور من ماء فتوضأ لهم فكفاه على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا ب3 غرفات من ماء ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فمسى برأسه فأقبل بيده وأدبر بها ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه. मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह अब यहाँ बता रहे हैं कि वुजू में जो मगसूल है, जिन अज़ा को धोया जाता है उन अज़ा को 3 मरतबा धोना ये मसनून है। और जिन अज़ा के ऊपर मसा किया जा रहा है उसमें तसलीस मसनून नहीं है बल्कि उसको एक ही मरतबा किया जाएगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह वगैरह के नज़दीक सर के ऊपर मसा एक ही मरतबा करना होगा, मसा में तसलीस मसनून नहीं है। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इस मसले में इख्तिलाफ है। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मग़सूल में जिस तरीके से 3 मरतबा किया जाता है, 3 मरतबा धोया जाता है, इस तरीके से सर के मसे में भी तसलीस मसनून है। इस वजह से शवाफे मसे में भी तसलीस की मसनूनियत के कायल हैं। और हदीस में वो हदीस बयान करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर का मसा किया और इस तरीके से क्या है 3 मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर पर मसा किया। हमारी तरफ से जवाब ये है कि मसा में तसलीस मसनून नहीं है, इस वजह से कि मसा में भी अगर तसलीस की जाएगी तो तसलीस 3 मरतबा लेने की वजह से वो तग़सील के माने में आ जाएगा और पानी को ज़्यादा इस्तेमाल हो जाएगा और धोने के माने में आ जाएगा। और शरीयत ने सिर्फ मसा किया है, इस वजह से मसा किया जाएगा। मसा कहते हैं यद मबलूल अत्तर, हाथ को फिरा देना, तो 1 मरतबा मसा कर देना ये काफ़ी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 3 मरतबा मसा करना जिस हदीस से मालूम होता है, असल हकीकत उसकी ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में बाल हुआ करते थे और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंठे रखा करते थे, बड़े लंबे बाल रखा करते थे। और मसा करने के बाद जब आगे से मसा किया जाएगा, पीछे से मसा किया जाएगा, तो फिर पीछे से मसा करने की वजह से वो बाल जो है वो बाल क्या खुल जाएंगे। फिर इस बाल को सही करने के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा हाथ इस्तेमाल किया, इसको मसा समझा गया। इस वजह से मसा में तसलीस मसनून नहीं है बल्कि 1 मरतबा मसा कर लेना ये काफ़ी है जी। حدثنا موسى قال حدثنا وحيب وقال مسح برأسه مرة. باب
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية. حدثنا عبد मुसन्नि रहमतुल्लाह ताला अलैह यहाँ पर माए मुस्तअमल का जिक्र कर रहे हैं कि मर्द ने वुजू किया और वुजू करने के बाद पानी बच गया, इसी तरीके से औरत ने वुजू किया और वुजू करने के बाद पानी बच गया, तो उस पानी को इस्तेमाल करना जायज़ है कि नहीं है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन क्या है अपने अपने घरों में वुजू करते थे और घरों में अपने महरम के साथ, बीवी के साथ, बेटी बेटियों के साथ आपस में वुजू करते थे। तो इस वजह से उस पानी को इस्तेमाल करने के बाद जो पानी बच जाए उसका क्या हुक्म है, वो मुसन्नि रहमतुल्लाह ताला अलैह यहाँ से बयान करते हैं। माए मुस्तअमल ने अभी बताया कि जो पानी बच गया वो पानी इस्तेमाल करना जायज़ और दुरुस्त है। जी। حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا हदीस पाक में जहाँ पर आता है कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के ज़माने में मर्द औरत दोनों साथ वुजू करते थे। उससे मतलब ये नहीं कि पूरी मदीना के लोग या पूरे मदीना की औरतें वो एक ही साथ में वुजू करती थी, बल्कि हर एक आदमी अपने अपने घरों में जो वुजू करते थे तो वो मियाँ बीवी दोनों साथ साथ गुस्ल करते थे, दोनों साथ साथ वुजू करते थे, ये मतलब है। जी। حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. इससे मुराद अपने अपने घरों में अपने अपनी जगह पर है, ना महरमों के साथ नहीं। जी। باب سب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. अगर कोई आदमी बेहोश हो जाए तो उसके ऊपर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पानी, वुजू का बचा हुआ पानी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाला और अल्लाह तबारक व तआला ने उससे इफाका दिया। जी। حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله تعالى عنه يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وانا مريض لا اعقل فتوضا وصب علي من وضوئه فعقلت فقلت हज़रत يا जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा बीमार हो गया तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत के लिए बीमार पुरसी के लिए तशरीफ लाए। जानी जी वाना मरीजुन। فقلت يا رسول الله لمن الميراث انما يرثني كلالة فنزلت آية الفرائض. और उस वक्त चूंकि वो ये समझे कि अब मैं इस बीमारी में मर जाऊंगा और मेरी वारिसों में तो सिर्फ मेरी क्या है कि बेटी है, इस वजह से उन्होंने पूछा सदका करने के मुतालिक, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मीरास की आयतें नाजिल फरमाई। जी। باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة. हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिस किस्म के जो बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे पानी के, आजकल तो हमारे यहाँ प्लास्टिक के और क्या है एल्यूमिनियम के वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये नहीं था, बल्कि क्या है कई पत्थर से बनाया हुआ कोई प्याला है या कभी क्या है लकड़ी का बना हुआ कोई प्याला है और उसमें क्या है पानी लेकर इस्तेमाल करते थे। उसको जिक्र किया जाए मिख़ज़ब, कद्दा और लकड़ी से बने हुए और हिजारा पत्थर से बने हुए बर्तन। जी। حدثنا عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن انس رضي الله تعالى عنه قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار الى اهله ये हदीस भी पहले तुम्हारे सामने गुजर चुकी थी कि जिसमें हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियां मुबारक से पानी निकला था। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मरतबा सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम की मजलिस जमी हुई थी। इतने में नमाज का वक्त आ गया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो लोग जिनका घर उस मजलिस में जो लोग घर उनके घर करीब थे वो तो जल्दी से अपने घर में गए। मैंने पहले बताया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद नबवी में वुजू के लिए पानी का इंतजाम नहीं होता था, बल्कि हर एक आदमी वुजू करके पहुंचता था। तो जो अपने अपने घरों में जिनका घर करीब था वो तो अपने अपने घरों में चले गए और घरों में चला जाकर उन्होंने वुजू किया और वुजू करके आ गए। लेकिन जो दूर रहते थे, जो मजलिस में आए हुए थे, उनके लिए क्या है इंतजाम वहाँ पर नहीं था। तो हुजूर अक़दस पर तलाश भी किया गया तो कोई पानी नहीं मिला। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अच्छा कोई पानी का है तो एक खसब एक कटोरा
بھر کر لایا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس میں رکھا اور ہاتھ میں سے معجزہ کے طور پر اللہ جل جلالہ و من والوں نے پانی جاری کر دیا, اور جو وہ صحابی وضو کرنا چاہتے تھے انہوں نے اسے وضو کیا. جی, من کا نہ قریب الدار ہے. من كان قريب الدار إلى أهله وبكي قوم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه فتوضأ. بہت ہی بڑا پیالہ لگا, مخضب جو من الحجارہ, جو پتھر سے بنا ہوا تھا, وہ برتن جو تھا بہت بڑا تھا تغارے کی طرح, اور وہ پتھر سے بنا ہوا تھا, وہ لایا گیا. جی, فیہ ماؤن. فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه فتوضأ القوم كلهم قلنا كم كنتم قال 80 وزيادة. صحابہ نے پوچھا کہ بھئی اس وقت وضو کرنے والے, اس پانی سے وضو کرنے والے کتنے صحابی تھے؟ کہ 80 سے زیادہ تھے, یعنی 80 سے زیادہ آدمی نے اس مخزب میں سے پانی لے کر وضو کیا. جی. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة رضي الله تعالى عنه عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پیالے میں سے پانی لیا, پانی لے کر چہرہ دھویا, پانی لے کر ہاتھ دھویا, اور پھر اس کے بعد کلی کی, اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مستعمل اور متبرک پانی بن گیا. جی. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له معا في طور من سفر فتوضأ فغسل وجهه 3 ويديه مرتين ومسح. طورین من صفر, صفر کہتے ہیں پیتل کو, پیتل کا کوئی برتن تھا, پیتل کا کوئی پیالہ تھا, وہ لایا گیا. جی. فغسل وجهه 3 ويديه مرتين ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال أتدري من الرجل الآخر؟ قلت لا. قال هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وكانت عائشة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه هريقوا علي من 7 كرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أهدو إلى الناس وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم تفقنا نسب عليه تلك حتى تفق يشير إلينا أن فعلتن ثم خرج إلى الناس أن قد فعلتن ثم خرج إلى الناس. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر جو حدیث تمہارے سامنے ذکر کی, یہ حدیث بھی پہلے تمہارے سامنے آ گئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, روزانہ ایک شب ہر بیوی کے یہاں قیام فرمایا کرتے تھے. پھر آخری عمر میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بڑی ہو گئی, جب بھی یہی معمول تھا, لیکن پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور بیمار ہونے کے بعد ہر بیوی کے یہاں الگ الگ رات گزارنا مشکل ہو گیا, تو پھر عورتوں نے مشورہ کیا اور یہ مشورہ کر کے طے کیا کہ کسی ایک جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنے دیا جائے, اور کیا ہے ہر ایک عورت وہاں پر کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی رہے. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا مسئلہ طے ہوا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تھے, دوسری عورتیں جو تھی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں آتی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے عیادت وغیرہ کرتی تھی, اور پھر اس کے بعد رات کو اپنے یہاں پر چلی جایا کرتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کیا ہے طاقت رہی وہاں تک مسجد میں تشریف لے جاتے رہے, اور جب مرض بڑھ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خود چلنے کی طاقت نہیں رہی
تو सहारे के साथ टेक लगाकर भी हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ ले जाते रहे। लेकिन फिर जब उस सहारे से भी जाने की ताकत नहीं रही, तो फिर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए फरमाया, मुरू अबा बकरिन अन युसल्ली बिन नास। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नमाज पढ़ाई। और जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुरू अबा बकरिन, तो उस वक्त हजरत आयशा का दिल में क्या था, हजरत हफ्सा के दिल में क्या था, वो पहले तुम्हारे सामने आ चुका है। बहरहाल यहाँ हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्बास के साथ और एक दूसरे रजुलन आखर, अब वो रजुलन आखर कौन था, ये हदीस भी पहले तुम्हारे सामने गुजर चुकी थी और उसमें बताया कि ये दूसरे हजरत अली थे और हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दोनों के दरमियान में कुछ चपकलश थी। इस वजह से हजरत आयशा ने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम नहीं लिया। शुरा इस किस्म की चीजें भी जिक्र करते हैं। और क्यों, इस वजह से कि एक वाक़या आएगा इफ्क का, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ऊपर तोहमत का। उस वक्त हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया था, तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया था कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस एक औरत के लिए, हजरत आयशा के लिए इतना परेशान होने की जरूरत क्या है, दूसरी बहुत सारी औरत है, अब इसके साथ इस किस्म का मसला हुआ है तो इसको खत्म करके दूसरी ले आओ। ये हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को पसंद नहीं आया। बहरहाल इस किस्म की चीजें कही जाती है, लेकिन सही बात ये है कि ये कहना कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ चिढ़ थी, हसद था, नाराजगी थी, ये भी सही नहीं है। इसी तरीके से हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मुतालिक भी कहा जाता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ फलम यतकल्लम, यानी फिर उन्होंने बात नहीं की। ये भी उसके भी यही इसी किस्म के मतलब मुतालिक बयान किए जाते हैं, लेकिन सही ये है कि इस मसले में यानी मीरास के मसले में कि नबी जो छोड़कर जाता है उसमें मीरास नहीं मिलती। ये मसला हजरत आयशा हजरत फातिमा को मालूम नहीं था रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, लेकिन जब इनको बता दिया गया तो फिर उन्होंने इस मसले में कभी कलाम नहीं किया और कभी सवाल वगैरह नहीं किया। इस सिलसिले में उन्होंने नहीं पूछा। बहरहाल मेरा कहने का मकसद ये है कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या हैं, तालीम याफ्ता या हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द हैं। शागिर्द अगर अच्छी तरीके से इल्म हासिल कर लेता है, शागिर्द अच्छी तरीके से क्या है आदाब और अखलाक वगैरह सीख लेता है, तो ये उस्ताद की नेक नामी का सबब और जरिया बनता है। उस्ताद जितना ज्यादा अच्छा होगा, उसके शागिर्द उतने ज़्यादा कामिल होंगे, उतने ज़्यादा अच्छे होंगे। अब उस शागिर्दों में अगर कोई कमी रह जाती है, तो जहाँ शागिर्द की नालायकी है, वहाँ पर उस्ताद की कमज़ोरी भी पाई जाती है। इस वजह से ये कहना कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन में हसद रह गया था, बुग़्ज़ रह गया था या इस किस्म की माल की मोहब्बत रह गई थी वगैरह-वगैरह, ये सही नहीं है। अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालहू ने हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जो तालीम और तहज़ीब और जो तज़किया किया, वो इतना आला दर्जे पर तज़किया किया कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन हो गए और सहाबा के दर्जे पर कोई दूसरा आदमी नहीं पहुंच सकता। इस वजह से सहाबा को भी अपनी तरह माल का लालचू, हसद वगैरह करना सही नहीं है। लिहाजा यहाँ पर भी ये कहना कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने रजुलन आखर कहा, वो इस वजह से कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ उनकी बनती नहीं थी, सही नहीं है। असल हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के कमरे में से मस्जिद नबवी में ले गए और मस्जिद हजरत आयशा का रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का कमरा और मस्जिद नबवी कोई ज्यादा दूर नहीं, दरमियान में सिर्फ एक दीवार ही का फासला था। तो कमरे में से दीवार तक तो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जानिब थे और दूसरी जानिब हजरत उम्मे ऐमन या कोई सहाबिया औरत थी, और फिर उसके बाद वहां से लेकर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लेकर चले और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत अब्बास लेकर चले।
تو اس طریقے سے ایک طرف تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے آخر تک رہے، اور دوسری طرف جو آدمی تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دوسرے آدمی، یا حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی غلام تھا جنہوں نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا، تو دوسری طرف وہ بدلتے رہے، اس وجہ سے دوسری طرف کے آدمیوں کا نام نہیں لیا، وہ رجل آ کر کہا. جی باب الوضوء من اصل الطور. میں پھر اس کے بعد وہ پوری تفصیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھی بات ہے 7 کنویں کا پانی منگایا گیا، اور وہ مشکل بالکل بھرا ہوا ہو، کھلا ہوا نہ ہو. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، ان کا ایک بہت بڑا لگان تھا، بہت بڑا تغارہ تھا، بہت بڑا ایک ٹب تھا، وہ ٹب منگوایا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 7 کنویں کے الگ الگ پانی کو ڈال کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کرایا گیا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ہے غشی طاری ہو گئی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی. پھر جب بے ہوشی ختم ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسجد میں جانے کا ارادہ کیا، اور پھر کہا کہ 7 کنویں کے پانی میں ڈال کر مجھے غسل دیا جائے. چنانچہ اس طریقے سے کیا گیا، لیکن کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غشی طاری رہی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف نہیں لے جا سکے. اور پھر اخیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس اور رجل آخر کے سہارے سے، چلنے کی طاقت نہیں تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زمین پر گھسیٹ رہے تھے، نشان بنا رہے تھے. لیکن کیا ہے جیسے ایک آدمی پاؤں اٹھا کر چلتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے چلنے کی طاقت نہیں تھی، ضعف اور کمزوری بہت زیادہ تھی. جی باب الوضوء من الطور. حدثنا خالد بن طور یہ بھی ایک قسم کا برتن ہے جس کو ہم اپنے زمانے میں اگر ہم کہتے ہیں وہ ٹب کے معنی میں آتا ہے یا تغارے کے معنی میں آتا ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. جی حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال كان عمي يكثر من الوضوء فقال لي عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فدعا بطور من ماء فكفأ على يديه فغسلهما. کفا کے معنی جھکانا، یعنی اس برتن کو جھکایا، جھکانے کی وجہ سے پانی گرا تو اسے کیا ہے پہنچے تک ہاتھ دھو لیے. جی فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يده في الطور فمضمض واستنثر. دونوں ہاتھوں کو پہنچا تک اس طریقے سے دھو لیا، تو پھر اس طریقے سے طور میں برتن میں یا تغارے میں جو پانی تھا اس میں ہاتھ ڈال کر اس طریقے سے چہرہ دھویا. جی فمضمض واستنثر 3 مرات من غرفة واحدة ثم أدخل يده فاغترف بهما فغسل وجهه 3 مرات ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أخذ بيديه ماء فمسى رأسه فأدبر بيديه وأقبل ثم غسل رجليه فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأوتي بقدح راح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه. قال أنس رضي الله تعالى عنه فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه. قال أنس رضي الله تعالى عنه فحذرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. الواسع الرحرا مانے ایسا برتن کہ جس کا منہ کھلا ہوا ہو، وسیع ہو، یعنی اوپر سے منہ تنگ نہ ہو بلکہ وسیع ہو، اس قسم کا برتن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، اور اس میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ مد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد سے وضو فرمایا کرتے تھے. وضو کرنے کے لیے یہ مسئلہ تو تمہیں معلوم ہے کہ وضو کرنے کے لیے کوئی مقدار متعین فرض واجب اور ضروری نہیں ہے کہ جتنے پانی سے اعضاء دھل جائے بس اتنا کافی ہے، کم سے کم بھی اور زیادہ سے زیادہ بھی. لیکن ہاں اسراف وغیرہ اس میں نہیں ہونا چاہیے. میں نے ابھی بتایا تھا تمہیں کہ ہمارے یہاں چونکہ پانی کی وسعت ہے، فراوانی ہے، اس وجہ سے ہم بہت زیادہ پانی کو استعمال کرتے ہیں. کم پانی سے وضو کرنا یا کم پانی سے غسل کرنا یہ ہمارے
बस की बात नहीं है। हालांकि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब एक मुद पानी से वुजू फरमाया करते थे। मुद का पैमाना क्या है, उसका वजन क्या है, हाशिया देख लोगे तो हाशिया में पूरी तफसील वगैरह मौजूद है। बहरहाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुद से वुजू फरमाया करते थे। मैंने बताया था तुम्हें कि उन लोग नल के पास वुजू करते हैं, तो नल के पास वुजू करके बैठने के लिए तुम देखोगे तो वुजू करते हुए तकरीबन आधी डोल या उससे ज्यादा पानी इस्तेमाल होगा। इतने में तो साहबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के जमाने में घर के सारे लोग गुस्ल कर लिया करते थे। बहरहाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाबुन अल वुजू बिल मुद्दे जी باب الوضوء بالمد. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالسعي إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साल से या 5 वुजू में से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू फरमाया करते थे। बहरहाल वुजू में हजरत मौलाना अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह का मामूल मैंने तुम्हें बताया था कि वो ये फरमाते थे कि पानी में नल के साथ वुजू करना में जो पानी बहता है वो इसराफ है, इसराफ से बचना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला का हिसाब होगा और पूछा जाएगा कि इतना पानी तुम लोगों ने क्यों इस्तेमाल किया। और वो तो यहाँ तक फरमाते थे कि मस्जिद वालों को भी नल वगैरह का इंतजाम नहीं करना चाहिए, इस वजह से कि उससे पानी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। असल तो लोटे के जरिए से इस्तेमाल करना चाहिए और लोटे रख देने चाहिए। लोटे रखने के बाद अगर कोई आदमी फिर नल का इस्तेमाल करता है तो ये जिम्मेदार है। बहरहाल वुजू करने में भी पानी को ज्यादा ज़ाया नहीं करना चाहिए। बाज़ मरतबा 3 मरतबा की जगह पर 4 मरतबा, 5 मरतबा, 6 मरतबा धोते हैं, या बाज़ मरतबा पानी चलता रहता है और हम क्या है पाँव के ऊपर या हाथ के ऊपर पानी गिरता रहता है, तो ये इसराफ होगा। इस वजह से उससे बचने की जरूरत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक मुद से वुजू फरमाया करते थे जी। باب المسح على الخفين. حدثنا أسبغ بن فرج عن ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر رضي الله تعالى عنه عن ذلك فقال نعم إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا فقال عمر لعبد الله نحوه. मुसन्नी रहमतुल्लाह ताला अलैह वुजू के बाद अब दूसरा मसला तुम्हारे सामने जिक्र कर रहे हैं और ये है मसा अलल खुफ़ैन। मसा दोनों मोज़ों के ऊपर, पाँव के ऊपर जो मोज़े पहने हुए हो उसको पाँव को धोने की जगह पर अगर उसी मोज़े के ऊपर मसा कर लिया जाए तो मसा करना जायज़ है या मसा करना जायज़ नहीं है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला और इसी तरीके से जमहूर अइम्मा के नज़दीक, अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक मोज़े के ऊपर मसा करना जायज़ और दुरुस्त है। बल्कि नकल किया जाता है कि जो शख्स के खतानैन दोनों दामाद के क्या है शेखैन की फजीलत के कायल हो और दोनों दामाद हजरत उस्मान हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फजीलत के कायल हो और मसा अलल खुफ़ैन को मानने वाला हो तो समझ लो कि वो अहले सुन्नत वल जमात है। सहाबा किराम और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह वगैरह से भी इस सिलसिले में नकल किया जाता है कि जब तक के 60 या 80 सहाबा से साफ तौर पर जब तक हमें मसाल अल खुफ़ैन का मसला मालूम नहीं हुआ हमने मसाल अल खुफ़ैन को जिक्र नहीं किया। चलो मसाल अल खुफ़ैन से कल को बताएंगे। आज इतना ही काफी है, आधा घंटा पहले तुम्हारी छुट्टी जाओ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ में याद है जी। दम